Good morning, class 8th. Class 8th, first of all, yesterday I was saying that you don't have to do 10E. So remember, till D exercise you have to do indirect and indirect variation. And in D exercise, I am solving some of the questions to explain this exercise. Just see the sums and learn the concepts and the way I am doing. The questions, and ask your queries in the maths group. So here I am solving some of the questions of exercise 10D. You are most welcome with all your queries. So do not hesitate in asking your problems before starting the class. I just want to say this, and you're most welcome with your all doubts. Just ask your doubts in the maths group which we have created. I always say this, that the group which we have created is just to solve your doubts, your problems in any chapter, anytime. Okay, so exercise 10D, question number first. 8 oranges can be bought for rupees 10.40. 8 oranges can be bought for rupees 10.4 rupees. And how many more can be bought for rupees 16.9? So we have to calculate that 16.9 rupees में कितने oranges हम खरीद सकते हैं. देखिए, so in 10.4 rupees I can have 8 oranges. So if in 1 rupee I can purchase 8 upon 10.4 oranges. So in 16.9 rupees I can purchase 8 upon 10.4 into 16.9 oranges. Yes or no? So just calculate it. 2 4s are 8, 52. 13 4s are 52, and 13 ka square is 169. 4 se 4 cancel. We have 13. So it means in 16.9 rupees we can purchase 16 oranges. Now the question says how many more can be bought. कितने ज़्यादा खरीद सकते हैं. तो पहले हम 8 oranges खरीद रहे थे, अब 13 oranges. So how many more oranges we can buy? 13 minus 8, that is 5 more oranges we can have. और अगर आप 13 भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चलता है. ठीक है, इतना हम देख लेते हैं. After this question number 2 I am solving. Question number 2 says 15 men can build a wall in 60 days. 15 men can build a wall in 60 days. How many more men are required to build another wall of same size in 45 days? So we have now 45 days and we have to find the number of men. Again I am reading the question. 15 men can build a wall in 60 days. 15 आदमी किसी काम को 60 days में कर रहे हैं. How many more men? हमें और कितने आदमी चाहिए उसी काम को 45 days में करने के लिए. स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज विल गिव यू टोटल वर्क. ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. मैं कई बार ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुका हूँ और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इसको सीख भी गए हैं. सो नंबर ऑफ मेन इज 15 एंड नंबर ऑफ डेज इज 60. अब हम मान लेते हैं x मेन हमें चाहिए. कितने? x. सो नंबर ऑफ मेन इज x नाउ एंड नंबर ऑफ डेज इज 45. सो 15 3s are 45 and 3 20. So x comes out to be 20. ठीक है ना? So now we need 20 men. But the question does not ask how many men are required. Question says how many more men are required. So how many more men are required? 20 minus 15, that is 5 more men are required. Okay? I hope clear होगा. और अगर क्लियर नहीं हो तो कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लीजिए. ठीक है. Question number 3. Question number 3 of exercise 10D. Question number 3 of exercise 10D. Question says that 6 taps can fill an empty cistern in 8 hours. यानी कि 6 टैप 8 hours में किसी empty cistern को fill कर देते हैं. How much more time will be taken if 2 taps go out of order? मतलब 2 taps out of order. Out of order मतलब खराब हो गए. 2 taps खराब हो गए तो how much more time will it take? तो 2 टैप्स अगर खराब हो गए तो 6 minus 2, इसका मतलब अब 4 टैप्स रह गए. तो अभी 4 टैप्स कितनी देर में भर रहे हैं? मान लेते हैं x आवर्स में. तो फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ पर्सन्स. मैंने कहा ना, मैं ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करता हूँ टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस में. सो नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज की जगह इज इक्वल्स टू टोटल वर्क. ओके, सो नंबर ऑफ पर्सन्स की जगह हम नंबर ऑफ टैप्स ले लेते हैं, 6 टैप्स.
नंबर ऑफ आवर्स पहले लग रहे थे 8, ठीक है। अब हमारे पास कितने टैप्स हैं या कितने पर्सन्स हैं? अब हमारे पास 4 टैप्स है और टाइम कितना लग रहा है यही तो हमें निकालना है। टाइम लग रहा है अब x आवर्स, सो 4 2 8 एंड x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि अब 12 घंटे लग रहे हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि अब कितने घंटे लग रहे हैं, हमसे पूछा है वी हैव टू फाइंड हाउ मच मोर टाइम। तो हाउ मच मोर टाइम मीन्स पहले 8 घंटे लग रहे थे स्टूडेंट्स, अब 12 घंटे लग रहे हैं। तो हाउ मच मोर टाइम इट इज टेकिंग? इट इज टेकिंग 12 - 8, दैट इज 4 आवर्स मोर। आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए तो मुझे प्लीज फीडबैक करिए। मैंने मैथ्स ग्रुप इसीलिए क्रिएट कराया ताकि आप लोग अपनी क्वेरीज पूछें। अगेन अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ फैमिली ऑफ 5 persons कैन बी मेंटेन्ड फॉर 20 days with rupees 2840, यानी 2840 रुपए 20 दिन तक चल सकते हैं अगर 5 लोग हैं। फाइंड हाउ लॉन्ग विल रुपीज 6944 मेंटेन अ फैमिली ऑफ 8 persons, यानी कि अगर 8 आदमी हो तो कितने दिन तक 6900 रुपए तक उनका काम चल सकता है, कितने दिनों तक, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 5 आदमी हैं 20 दिन तक। अगर 5 आदमी 20 दिन में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो 5 आदमियों के लिए अगर 20 दिन का खाना है या 20 दिन के लिए इनके लिए कुछ भी सब खाना बोल सकते हैं, तो एक आदमी के लिए ये कितने दिन चलेगा? ऑब्वियसली ज्यादा डेज चलेगा। तो 20 × 5 दैट इज 100 डेज। एक आदमी के रेस्पेक्ट में निकाला है, एक आदमी के लिए 100 डेज का है, यानी कि ₹2840 एक आदमी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 100 दिन का काम उनका, एक आदमी का 100 दिन का काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक दिन का काम, 100 दिन के लिए अगर इतने रुपए चाहिए तो एक दिन के लिए कितने रुपए चाहिए? 2840 अपॉन 100 रुपीज। अब इसको जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। यहां पर हमसे पूछा था 8 persons के लिए कितने दिन, तो हमने मान लिया भाई x दिन, 8 persons के लिए x दिन। अब आइए, अगर 8 persons के लिए x डेज तक 6900 रुपए चल सकते हैं तो एक आदमी के लिए कितने दिन तक चलेंगे? ज्यादा दिन चल जाएंगे, तो 8 × x डेज के लिए चल जाएंगे, हाँ है ना। 8 × x डेज के लिए 6944 रुपीज चल सकते हैं। तो एक दिन के लिए कितने पैसे चल जाएंगे? 6944 अपॉन 8x। ये भी एक दिन का है और ये भी एक दिन का है एक आदमी के लिए, तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए। इट मीन्स 2840 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 6944 अपॉन 8x। अब आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 28 0 से 0 कैंसिल, into 8x is equals to 10 into 6944. So x is equals to 10 into 6944 upon 284 into 8. You can calculate it and get the answer. Still, if you have any problem, then let me know. This is the number of days now. So I have solved question number 1, 2, 3, 6. एक और फॉर्मूला आपको आज समझाता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। m1 d1 t1 अपॉन w1 विच इज इक्वल्स टू m2 d2 t2 अपॉन w2। नाउ व्हाट इज m d t w? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, t मीन्स एक दिन में कितने घंटे काम किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 आदमियों ने 8 दिन तक काम किया, डेली 6 आवर्स पर डे, ठीक है बेटा। तो m1 इज 10, d is days 8 and t is 6 hours per day. Okay, got it? So this formula is very important. Now the question based on this formula will be like this कि 10 आदमी 8 दिन में डेली 6 घंटे काम करके कोई काम कर लेते हैं। तो बताइए कि 20 आदमी कितने दिन तक काम करें, मान लीजिए 7 घंटा पर डे, कि वो काम कंप्लीट हो जाए। तो इस फॉर्मूले से आप ऐसे क्वेश्चंस एक लाइन में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेबरर्स प्रॉमिस टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब मान लेते हैं एक्स लेबर्स ने किसी काम को 10 दिन में करने का प्रॉमिस किया है, बट 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट। 5 उनमें से आए नहीं, 5 उनमें से एब्सेंट हो गए। अब रिमेनिंग लेबर्स ने वो काम, यानी x माइनस 5 लेबर्स ने वो काम कितने दिन में कर लिया? 12 दिन में कर लिया। आपसे पूछा ओरिजिनल कितने लोग थे, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ कई बार। कौन सा फॉर्मूला है? अब तक तो आपको रट गया होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज गिव्स यू टोटल वर्क। तो पहले कितने आदमी थे? x। कितने दिन में काम कर रहे थे? 10। अब कितने लोग हैं? x माइनस 5। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12। एक बार फिर इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूं। नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज से आपको क्या मिल रहा है? वर्क। नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज से क्या मिल रहा है? वर्क। तो 10x इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 5। 10x इज इक्वल्स टू 12x माइनस 60। 60 is equals to 12x minus 10x. 2x is equals to 60 and x comes out to be 30. यानी कि पहले 30 लेबर्स थे। Got it? अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए और कोई भी क्वेरी हो तो मैथ्स ग्रुप पे पूछिए। थैंक यू।